Hello everyone, so in this video we will continue our discussion with the disease of spleen. So without any further ado, let's get started. So देखो भाई, simply the arterioles and the fibers of the reticuloendothelial systems are affected. जब भी spleen में diffuse type of amyloid infiltration होगा तो वहाँ पे जो arterioles और fibers होंगे of the reticuloendothelial system वो affect हो जाएंगे. Moving on, the organ is enlarged with the rounded edges and the cut surface is smooth and translucent. जब भी अमिलॉइड इन्फिल्ट्रेशन डिफ्यूज टाइप का होता है तो वहां पे स्प्लीन में मॉडरेटली और मार्क्ड इनलार्जमेंट देखने के लिए मिलता है, जिसके जो सरफेसेस होते हैं वो कैसे होंगे, ट्रांसुलेंट एंड स्मूथ, एंड जो उनके एजेस होंगे वो कैसे होंगे, राउंड शेप के. ठीक है. So this is the microscopic picture of the amyloid infiltration in the spleen. Kindly have a look at it. Now moving on, we will discuss about the pigmentation in the spleen, and the hemosiderosis is not important unless it is present in the large number in the spleen. The normally hemosiderin is stored in the spleen in the reticular macrophages. Increased amount of the hemosiderin pigment may be seen in the hemolytic anemias. The hemosiderin is stained bluish with the pearl stain. So देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे about the pigmentation in spleen, or you can say coloration of spleen. So simply the hemosiderosis is not important unless in the large number. देखो हीमोसाइड्रिन क्या होता है, एक कलरिंग एजेंट. अगर इसका अमाउंट और कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो वहां पे हीमोसाइड्रोसिस की कंडीशन डेवलप हो जाएगी. लेकिन जो स्प्लीन है यहाँ पे हीमोसाइड्रोसिस की कंडीशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती अनटिल एंड अनलेस हीमोसाइड्रिन का काउंट बढ़ नहीं जाता. ठीक है. आफ्टर दैट, normally hemosiderin is stored in the spleen in the reticular macrophages. अब ये जो hemosidrin है which is a coloring agent, ये spleen के reticular macrophages में normally stored होता है. ठीक है. Increased amount of the hemosidrin pigment may be seen in the hemolytic anemias. अब देखो स्प्लीन के केस में हीमोसाइड्रोसिस और द इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ हीमोसाइड्रिन पिगमेंट आपको कब देखने के लिए मिलेगा, इन द केस ऑफ हीमोलिटिक अनीमियास, तभी आपको वहां पे पिगमेंटेशन देखने के लिए मिलेगी. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हीमोलिटिक अनीमिया क्या है. सो सिंपली हीमोलिटिक अनीमिया एक ऐसा अनीमिया है जहां पे आरबीसी का प्रोडक्शन तो हो रहा है लेकिन उस रेट से नहीं हो रहा जिस रेट से इसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है. ठीक है. तो जब भी हीमोलिटिक अनीमिया की कंडीशन डेवलप होगी वहां पे अमाउंट ऑफ हीमोसाइड्रिन स्प्लीन में बढ़ जाएगा एंड देन यू विल सी द हीमोसाइड्रोसिस, जिसकी वजह से वहां पे पिगमेंटेशन आपको देखने के लिए मिलेगा इन द स्प्लीन. ठीक है. आफ्टर दैट the hemosidrin is stained bluish with the pearl stain. अगर आप स्प्लीन में पता लगाना चाहते हो कि वहां पे हीमोसाइड्रिन प्रेजेंट है या नहीं है तो सिंपली आप पर्ल स्टेन का यूज करोगे और आपको वहां पे एक ब्लूइश कलर का अपीयरेंस देखने के लिए मिलेगा. देन इट इज कंफर्म कि वहां पे हीमोसाइड्रिन है. ठीक है. Now moving on, we will discuss about the rupture of the spleen. So the rupture of the spleen is common in the dogs. Coming to the etiology, it can be caused due to the automobile accident, sharp blow in the abdomen, splenomegaly due to the congestion, amyloidosis and hyperplasia, or tumors. The gross pathology says that the spleen may be divided into the pieces. So देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे about the rupture of the spleen. So simply the rupture of spleen is common in the case of dog. अब देखो जो स्प्लीन का रप्चर है, ब्रेकिंग डाउन है, ये अक्सर आपको डॉग्स के केस में देखने के लिए मिलता है. कमिंग टू द etiology और द causative agent behind the rupture, it can be automobile accident, sharp blow in the abdomen, splenomegaly due to the congestion, amyloidosis, hyperplasia और the tumors. देखो डॉग के केस में जो स्प्लीन का रप्चर है ये अक्सर ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स की वजह से, कार वगैरह से एक्सीडेंट हो जाता है डॉग का, इसकी वजह से देखने के लिए मिलता है. साथ ही साथ अगर कोई शार्प ब्लो हो एब्डोमेन में इन द डॉग्स तो वहां पे रप्चर हो जाएगा स्प्लीन का. साथ ही साथ द कॉजेटिव एजेंट कैन बी स्प्लीनोमेगेली. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है ड्यू टू द कंजेशन, अमिलिडियोसिस और हाइपरप्लेशिया और द ट्यूमर्स, तो वहां पे क्या है, जो स्प्लीन है उसका रप्चर हो जाएगा. ठीक है. After that, coming to the gross pathology, here you can see the spleen which is divided into the many pieces. सिंपल सी बात है, अगर स्प्लीन का रप्चर हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, तो ग्रॉसली आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, स्प्लीन छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा. ठीक है. Now moving on, we will discuss about the circulatory disturbances in the spleen, and the first circulatory disturbance is the acute congestion. The acute congestion is common in the acute infectious disease and in acute bacterial intoxication as in the enterotoxemia. The second circulatory disturbance is the acute passive congestion. The etiology says that euthanasia by the barbiturates or the paralysis of the
splanchnic nerve. Coming to the gross pathology, the spleen is very much enlarged and soft on the section. The cut surface bulges and dark blood oozes. So देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे about the circulatory disturbances in the spleen, and the first circulatory disturbance is the acute congestion. So simply acute congestion is common in the acute infectious disease and in acute bacterial intoxication as in the enterotoxemia. देखो, अब जो spleen है उसमें हमें circulatory disturbances देखने के लिए मिलते हैं, and the first circulatory disturbance that you can notice in the spleen is the acute congestion. देखो, मान लो कि कोई एनिमल है, वहां पे कोई इन्फेक्शन हुआ किसी बैक्टीरिया की वजह से फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अब जब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो बैक्टीरिया क्या करेगा, टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करेगा और वहां पे एंटेरोटॉक्सीमिया की कंडीशन को डेवलप कर देगा, ठीक है, जिसकी वजह से वहां पे इंटॉक्सिकेशन हो जाएगी उस पर्टिकुलर एनिमल में। सो सिंपली ऑल दिस थिंग लीड टू द एक्यूट कंजेशन ऑफ द स्प्लीन। एक्यूट कंजेशन की कंडीशन कब डेवलप होगी, एक्यूट इन्फेक्शियस केस में, जहां पे जो बैक्टीरिया है टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करके एंटेरोटॉक्सीमिया की कंडीशन डेवलप करेंगे एंड एनिमल में इंटॉक्सिकेशन देखने के लिए मिलेगा जो कि एक्यूट कंजेशन को डेवलप करेगा, ठीक है। सो देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द नेक्स्ट सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंस एंड इट इज एक्यूट पैसिव कंजेशन। तो अब बात करते हैं इसके कॉजेटिव एजेंट और एटियोलॉजी की। सो सिंपली इट कैन बी यूथनेशिया बाय द बार्बिटरेट्स एंड द पैरालिसिस ऑफ द स्प्लैंकिक नर्व। अगर किसी एनिमल को हम पेनलेस किलिंग करते हैं बाय गिविंग बार्बिटरेट्स तो वहां पे आपको एक्यूट पैसिव कंजेशन देखने के लिए मिल सकता है। एंड अगर किसी भी एनिमल में स्प्लैंकिक नर्व पैरालाइज हो जाती है तो वहां पे एक्यूट पैसिव कंजेशन डेवलप हो जाता है, ठीक है। कमिंग टू द ग्रॉस पैथोलॉजी, द स्प्लीन इज वेरी मच enlarged एंड द सॉफ्ट। अगर किसी भी एनिमल के स्प्लीन में एक्यूट पैसिव कंजेशन डेवलप हो गया है तो स्प्लीन काफी बड़ा हो जाएगा, साथ ही साथ काफी सॉफ्ट हो जाएगा। एंड ऑन द कट सेक्शन द सरफेस बल्जेस एंड डार्क ब्लड ओजेस। सिंपली अगर जो भी एनिमल है जहाँ पे स्प्लीन में एक्यूट पैसिव कंजेशन है तो पहली बात तो स्प्लीन बहुत बड़ा हो गया, एंड व्हेन यू विल कट द स्प्लीन टू स्टडी द ग्रॉस पैथोलॉजिकल लीजन्स तो यहाँ पे सरफेस जो है बल्जेस आउट हो गया और साथ ही साथ डार्क कलर का ब्लड बाहर की तरफ आपको निकलता हुआ दिखेगा, ठीक है। Now moving on, we will discuss about the next circulatory disturbance in the spleen, and it is chronic passive hypermia. The causative agent behind this circulatory disturbance can be chronic general venous congestion, cirrhosis of the liver leading to the congestion of the portal vein, partial or the complete obstruction of the venous return. Coming to the gross pathology, the spleen is moderately enlarged and firm. Coming to the histopathology, the hemosiderin accumulate in the phagocytes. There is gradual replacement of the pulp cells and follicles by the fibrous tissue. The trabeculae also have more fibrous tissues. So देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे about the next circulatory disturbance in the spleen and it is chronic passive hypermia. So सबसे पहले बात करते हैं about the etiological agent. So it can be caused due to the chronic general venous congestion. Simply क्या है, अगर काफी ज्यादा समय से वेन्स में कोई कंजेशन प्रेजेंट है तो वहां पे क्रोनिक पैसिव हाइपरमिया की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, जो रेट ऑफ ब्लड फ्लो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, दैट लेड टू द सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंस इन द स्प्लीन, ठीक है। After that, the next causative agent can be cirrhosis of the liver, which led to the congestion of the portal vein. अब देखो, अगर लिवर में क्रोनिक इन्फ्लामेशन प्रेजेंट है, सिरोसिस प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से पोर्टल वेन का कंजेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से रेट ऑफ ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा और यू कैन से क्रोनिक पैसिव हाइपरमिया की कंडीशन डेवलप हो जाएगी, जिसकी वजह से स्प्लीन में सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंसेस डेवलप होंगे, ठीक है। The next agent can be the partial or the complete obstruction of the venous return. Simply veins में अगर कोई partial और complete obstruction present है, ठीक है, during its return of blood to the heart, तो क्या है यहाँ पे रेट ऑफ ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, क्रोनिक पैसिव हाइपरमिया की कंडीशन डेवलप हो जाएगी, जिसकी वजह से स्प्लीन में सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंसेस डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। सो देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द ग्रॉस पैथोलॉजी। सो सिंपली द स्प्लीन इज मॉडरेटली enlarged एंड फर्म। सो देखो, अगर स्प्लीन में क्रोनिक पैसिव हाइपरमिया की कंडीशन डेवलप हो गई है तो स्प्लीन enlarged हो जाएगा, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा एंड इट विल बी फर्म इन नेचर, मतलब थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द हिस्टोपैथोलॉजी। सो सिंपली द हेमोसाइडरिन accumulates in the phagocytes.
देखो भाई, हिस्टोपैथोलॉजी की बात करें तो स्प्लीन के अंदर जो फेगोसाइट्स प्रेजेंट है वहां पे हीमोसाइड्रिन का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। हीमोसाइड्रिन क्या होता है? एक एंडोजीनस पिगमेंट जिसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है, ठीक है। After that, there will be gradual replacement of the pulp cell and follicle by the fibrous tissue. स्प्लीन के अंदर जो भी पल्प सेल्स और फॉलिकल प्रेजेंट है वो धीरे धीरे रिप्लेस हो जाएंगे विद द फाइब्रस टिश्यू ड्यू टू द क्रॉनिक पैसिव हाइपरमिया, ठीक है। आफ्टर दैट histologically you will see the trabeculae also have more fibrous tissue. स्प्लीन के अंदर जो भी ट्रेबिकुले प्रेजेंट है उनके अंदर भी फाइब्रस टिश्यू का डिपोजिशन होने लगेगा ड्यू टू द chronic passive hypermia condition, ठीक है। The next circulatory disturbance can be the thrombosis of the splenic vein, which is very rare. Occasionally, it is seen in the case of traumatic reticulitis and portal thrombosis in cattle, and the extension from the parasitic abscess in the horses led to the thrombosis of the splenic veins. देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द नेक्स्ट सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंस इन द स्प्लीन एंड इट इज थ्रोम्बोसिस ऑफ द स्प्लीनिक वेन। स्प्लीनिक वेन्स में क्या है? ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया एंड इट इज वेरी वेरी रेयरली सीन। बहुत ही कम केसेस आपको देखने के लिए मिलेंगे जहां पे स्प्लीनिक वेन में थ्रोम्बोसिस हो, ठीक है। इट कैन बी सीन ऑकेशनली इन द कैटल एंड द हॉर्सेस। कैटल की अगर मैं बात करूं तो वहां पे ट्रॉमेटिक रेटिकुलाइटिस और पोर्टल थ्रोम्बोसिस की वजह से थ्रोम्बोसिस ऑफ स्प्लीनिक वेन डेवलप होता है। बेसिकली अगर किसी ट्रॉमा के कारण रेटिकुलम में इन्फ्लेमेशन हो गया है और पोर्टल वेन में कोई ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हो गया है, सो दैट विल लीड टू द थ्रोम्बोसिस ऑफ द स्प्लीनिक वेन इन द केस ऑफ कैटल। और इन द केस ऑफ द हॉर्सेस इट कैन बी कॉज्ड ड्यू टू द एक्सटेंशन फ्रॉम द पैरासाइटिक एब्सेस। जो पैरासाइटिक पस है उसकी वजह से स्प्लीनिक वेन का थ्रोम्बोसिस होगा, स्प्लीनिक वेन में ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन होगा इन द केस ऑफ हॉर्स, ठीक है। So that's all for this video. We will meet very soon in the next one.